Boys and girls, it's that time of the day, of the week, of the month, of the year. जब एक brand new phone का review यहां पर FameTech पे होने वाला है. This time, it's the Asus Zenfone द्वितीय. सबसे पहले बता दूं Asus Che, which is a Taiwanese company which is really popular for making all the cool components जिसकी वजह से गजब के machines बनते हैं. All your motherboards, all your graphics cards. Primarily, it was a chipset manufacturing company from Taiwan, but Asus realized कि भाई साहब हमारे chipset से दुनिया जहान की कंपनी जो है वो amazing gadgets बना रही है. Why not just make our own gadgets? That's how Asus consumer products started. The cool thing about Asus is that their innovation quotient is absolutely mind-blowing. And then of course the Zenfone smartphone series जो इजाद हुई to give really affordable, very good quality hardware. One key differentiator Asus के Zenphones में, which is 4, 5, 6 and now 2, is उनकी partnership Intel के साथ. That's right, Asus जो otherwise chipsets बनाता है वो फोन के लिए नहीं बनाता, कंप्यूटर्स वगैरह के लिए बनाता है. Intel, which is a laggard in the phone chipset making race, क्योंकि Qualcomm और बाकी कंपनियों ने काफी बढ़त इसमें हासिल कर ली थी. Intel powers all the Asus Zen phones. With that sexy background in place, let's get you up to speed with the baby जिसका आज रिव्यू होने वाला है, which is the Asus Zenfone 2. Here's a quick look at the tech specs. It's amazing, right? 14 से 18,000 रुपए के अंदर एक 1.5 साल पहले it was unimaginable कि आपको एक 5.5 इंच की स्क्रीन का फुल HD रेजोल्यूशन का फोन 2GB रैम के साथ मिलने वाला है. Absolutely love technology. जहां पे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होते जाती है वैसे ही प्राइसेस घटते जाती है. कंज्यूमर्स के लिए there's never been a better time to buy a budget phone जो 15 से 20,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में हो. That is exactly where the Asus Zenfone 2 sits in a very sweet spot. But मैं जिक्र करने वाला हूं मेरे फेवरेट हार्डवेयर फीचर का, which has to be the processor. And seriously, Asus Zenfone 2 के Intel Z3580 Intel Atom processor के साथ खेलने के बाद I'm completely surprised कि why are more phone makers not using Intel processors अपने phones के अंदर, क्योंकि गजब के परफॉर्मेंस के साथ जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन Intel Atom के प्रोसेसर्स आपको देते हैं on your cell phones, it is seriously shocking. मतलब a similar phone with a MediaTek और a Snapdragon processor, उसके ऊपर easily 15 से 20% extra battery life आपको Intel Atom processor देता है, which in a life and death situation, बॉस 15-20% मतलब जीने मरने का सवाल हो सकता है. Of course, जो सबसे बड़ा मार्केटिंग वाला फीचर है इस फोन के अंदर, it is दुनिया का पहला 4GB रैम वाला फोन. क्या आपको इसकी जरूरत है? नहीं. फिर क्यों Asus ने डाला है? और क्या कर सकते हैं? Because they can. As simple as that. Well, 4GB RAM basically means कि मस्के की तरह ये फोन चलता है और आप कितना भी मल्टीटास्किंग क्यों ना कर रहे हो, बहुत ज्यादा हाई एंड ग्राफिक्स वाले जो सारे एप्स है, 6 एप्स मैंने एक टाइम पे, यहां पे 3 दिखा रहा हूं, 3x2, 6 एप्स एक साथ चला रहा था. उसके साथ फेम ऐप जिसके ऊपर मैं लाइव बीम करता हूं वो चला रहा था. यूट्यूब खुला हुआ था. तमाम सोशल मीडिया के जो एप्स होते हैं विच इज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारे खुले हुए थे. फोन ना अननेसेसरीली गर्म होता है ना कहीं लैग होता है. एंड दैट्स व्हेन मैं बैठा हुआ था, दैट्स व्हेन आई गॉट अप एंड आई वाज लाइक, डूड, Asus salute. #respect bro. Amazing hardware. And that is where the Intel Atom processor and the 4GB RAM really kicks in. Of course, इसी फोन का Zenfone 2 का एक और वर्जन है which is a 2GB RAM वर्जन जिसमें उससे कंपैटिबल प्रोसेसर और बाकी सारा चिपसेट है जो 4,000 रुपए सस्ता है. दोनों फोन्स में गजब का परफॉर्मेंस है और उम्दा बैटरी लाइफ है. One really cool feature in all Asus phones है इसकी कैमरा काबिलियत. In the Zenfone 2 also there's a 13 megapixel rear snapper with a 5 megapixel front camera. 13 megapixel जो rear camera है, it's good quality. I won't say it's mind blowing. Broad daylight में decent pictures. In low light मैं कहूँगा, हालांकि उनका अपना pixel master technology है जिससे low light captures काफी aid होते हैं, but I would say stay away from low light photography, especially non-flash.
इसमें डुअल एलईडी फ्लैश दिया गया है, यानी कि व्हाइट एंड एम्बर दोनों किस्म के एलईडी फ्लैश इसमें दिए गए हैं। बेझिझक उसे इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छे स्किन टोन्स आते हैं। बट ऑफ कोर्स अगर आप सेल्फी के शिकार हैं, खुद की लेना पसंद करते हैं, खुद की सेल्फी लेना पसंद करते हैं, देन देयर इज अ 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा जिसमें ब्यूटिफिकेशन करके फीचर है। इफ दैट इज रियली योर मकसद आसूस कि यंग लड़कियों को जो सेल्फी के शिकार है उन्हें ये फोन बेचना है, देन आई मस्ट से मिशन अकम्प्लिश्ड। एक और बड़ा कूल फीचर जो मुझे पसंद है Asus Zenfone 2 के बारे में, जो बहुत सारी कंपनियां अभी दे रही हैं एंड इट हैज टू बी देयर, इज फास्ट चार्ज। अगर आपका फोन जीरो बैटरी पे है एंड यू प्लग इट इन फॉर 30 मिनट्स, फोन 60% चार्ज हो जाता है विद इन 30 मिनट्स, विच इज फैंटास्टिक। आपका आधा दिन निकल सकता है ऑन 60% चार्ज। दैट्स अ ग्रेट फीचर आई थिंक, जब आप क्रंच में हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ट्रेन वगैरह में हैं, ब्यूटीफुल फीचर। एंड द सेकेंड फीचर इज दैट स्क्रीन इसकी अमेजिंग है ही। थोड़े कलर्स आपको कम पंची लग सकते हैं कंपेयर टू दी अदर फोन स्क्रीन्स इन दिस बजट। खास करके Xiaomi के स्क्रीन अगर आप देखोगे या Samsung जैसे फोन्स की स्क्रीन देखोगे, उसमें बहुत ज्यादा पंच और सैचुरेशन होता है। बट द गुड पार्ट इज कि इसके अंदर स्क्रीन कलर्स, सैचुरेशन, तमाम चीजें, कॉन्ट्रास्ट आप खुद मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो देयर इज अ गुड कस्टमाइजेशन नॉट जस्ट फॉर द स्क्रीन बट फॉर द थीम्स ऑल्सो इन द फोन। सो बारिंग दैट, द वन थिंग दैट आई थिंक अननेसेसरी दी गई है फोन में, वो है Asus का ब्लोटवेयर। इतने ज्यादा अननेसेसरी एप्स हैं जो इसका Zen यूजर इंटरफेस है एंड्रॉइड लॉलीपॉप के ऊपर, वो मुझे लगता है थोड़ा मजा किरकिरा कर देता है। थोड़ी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी इन सारे एप्स को अनइंस्टॉल करने में। बट वंस दैट इज डन, इट्स अ रियली कूल, सुप्रीमली फास्ट, पावरफुल फोन। डिजाइन इनोवेशन आपने तो देखा ही होगा, इट्स गॉट अ कर्व बैक जिसकी वजह से आई थिंक इट फिट्स इन ब्यूटीफुली इन द हैंड एंड देयर इज अ सेंट्रल पावर बटन ऑन टॉप यहां पे एंड द वॉल्यूम रॉकर इज एक्चुअली एट द बैक। आई लाइक दिस वॉल्यूम रॉकर। पीछे वाला आइडिया जो LG के G सीरीज फ्लैगशिप में फ्लैगशिप फोन्स में था, बट द पावर बटन ऑन टॉप ये बेहद ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है। Asus कुछ करो इसके बारे में यार। एक तो बड़ा फोन है 5.5 इंच का, एवरी टाइम आपको मलखाम करके, जिम्नास्टिक्स करके ऊपर पहुंचना पड़ता है और इसे पावर बटन को दबाना पड़ता है, विच इज नॉट द मोस्ट टैक्टाइल फीडबैक वाला बटन। सो ऑफ कोर्स आप डबल टैप कर सकते हैं होम स्क्रीन पे टू इसे जिंदा करने के लिए या इसे जगाने के लिए, बट आई थिंक इफ द पावर बटन वुड हैव बीन हियर या फिर एटलीस्ट ऑन द एज यहां पे मिडिल ऑफ द बॉडी, इट वुड हैव बीन रियली कूल। बट आई एम ओनली निट पिकिंग। गैजेट वाला की तरफ से इसे मिलता है डेफिनेट थम्स अप, अ डेफिनेट पिक। आप बेझिझक, बेशक जाके इसे खरीद सकते हैं। इट्स अ ग्रेट डिवाइस एंड होल्ड्स इट्स ओन इन फ्रंट ऑफ द Xiaomi's, द Lenovo's, Gionis, Micromaxes और तमाम सारे अदर फोन in this price category. Well, what did you think about my Asus Zenfone 2 review? I'd love to hear from you. Comment section में लिखिएगा, @AnkitV on Twitter वहां पे बताइएगा, @GadgetWala on Instagram वहां बता सकते हैं, and of course I'm also GadgetWala on the Fame app. यहाँ पर मैं live unboxing, live first hand impressions, reviews and सारी action लेके आता हूँ from all over the world, from all my travels and all the amazing things that my job makes me do. Do check out the HTC M9 Plus, HTC का latest flagship phone, उसका review, and of course the Lenovo Yoga Pro 3, which according to me is the best ultra portable laptop, hybrid laptop in the market today. This is Gadgetwala signing out. Take care and do subscribe to FameTech.